और ब्रेकिंग 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। अमेरिका यात्रा के दौरान एक प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया है और पश्चिम की नकारात्मक सोच की आलोचना की है। निर्मला सीतारमण ने उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत में मुसलमान फल फूल रहे हैं, मुसलमान व्यापार कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत बेहद खराब है। अगर मुसलमानों को किसी तरह की यहां दिक्कत होती तो क्या उनकी संख्या बढ़ती? ये बात कही है निर्मला सीतारमण ने अपने अमेरिकी विजिट के दौरान। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject, it's not the government of India's subject. Each province has its elected government, they take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I host them. Let them come and let them travel knowing and prove their चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पवन गौड़। पवन, अभी हमने सुना निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि भारत का मुसलमान फल फूल रहा है, तरक्की के भी उसको मौके मिल रहे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में किस तरह से देखेंगे उनके इस बयान को? देखिए, निर्मला सीतारमण आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक है, उसमें हिस्सा लेने गई हैं। वहीं उन्होंने पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो वाशिंगटन डीसी में है, वहां उन्होंने एक चर्चा के दौरान इस पूरे वाकये का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम के देश जो लगातार कहीं ना कहीं वो इंडिया को एक माइनॉरिटीज के मामले में कहीं ना कहीं एक गलत तथ्य पेश करके उनके सामने, पूरी दुनिया के सामने गलत तथ्य पेश करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों का बंटवारा हुआ और जब दोनों ही देश आजाद हुए
तो उसके बाद में हिंदुस्तान में जितनी संख्या थी माइनॉरिटीज की, और खासकर अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो जितनी संख्या थी उसके बाद से लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहां रोजगार के बहुत सारे मौके उनको मिल रहे हैं, यहां सरकारी जॉब हो या प्राइवेट काम हो वो लगातार उन लोगों को मिल रहे हैं माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो जितनी संख्या वहां अल्पसंख्यकों की थी आजादी के बाद से वो लगातार गिर रही है, और वहां अल्पसंख्यकों के क्या हालात हैं वो लगातार दुनिया के सामने है। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो शिया जो मुस्लिम समुदाय है उसके हालात भी पाकिस्तान के अंदर खराब हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे दुनिया को दिखाया कि जो चीज आप हिंदुस्तान के बारे में अवधारणा बनाते हैं दुनिया के सामने ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो जिसको भी सच जानना है वो हिंदुस्तान आइए, मैं सबका स्वागत करती हूं, इनवाइट करती हूं कि आप हिंदुस्तान आइए और यहां के जो मुस्लिम लोग हैं वहां आइए, जमीनी हकीकत देखिए और फिर अपने किसी भी जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचिए। लेकिन सिर्फ यही कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से एक अवधारणा बना लेना किसी भी देश के बारे में वो ठीक नहीं है। और निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि हालांकि जो कानून व्यवस्था है वो राज्यों का सब्जेक्ट होता है, वो केंद्र सरकार का सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब आप आंकड़े देखेंगे, जब आप नंबर्स पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लगातार तरक्की कर रहा है और यहां किसी भी तरह का प्रताड़ना उनको नहीं दी जा रही है। बिल्कुल पवन, आपने तमाम तर डिटेल्स जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं। पवन, एक और पॉइंट यहां पर उस पर एनालिसिस चाहेंगे। लगातार सोशल मीडिया पर हम खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, दाने दाने को वहां के लोग जो है वो मोहताज हो रहे हैं। कई ऐसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट हमने देखी है जिसमें आज भी वो ये कह रहे हैं कि वहां के जो आम लोग हैं कि इससे अच्छा तो कि हम भारत में ही रहते, यानी कहीं ना कहीं वहां के निवासियों को भी ये लग रहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति कहीं बेहतर है। और एग्जैक्टली यही बात यहां पर निर्मला सीतारमण ने कही है। जाहिर तौर पर जिस तरह से बहुत सारे देश और सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको लगातार परेशान किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा संदेश देने की कोशिश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पूरे भाषण के दौरान की थी। तो उन्होंने कहा कि आप चाहे देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो अर्थव्यवस्था इस समय खराब है, लगातार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इससे बढ़िया हमारी स्थिति अगर हम हिंदुस्तान के अंदर होते तो वहां ज्यादा बेहतर होती। यानी कि एक संदेश साफ है, हिंदुस्तान में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं वो माकूल हैं, वो अनुकूल हैं सभी वर्गों के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो या बहुसंख्यक वर्ग हो, सबके लिए माकूल है। जैसा कोशिश होती है लगातार एक विचार बनाने की, एक स्पेक्ट्रम बनाने की कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की हालत खराब है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। और यही कोशिश निर्मला सीतारमण कर रही है लगातार, क्योंकि दुनिया के कई सारे देश ऐसा एक संदेश देते हैं और इन सब पर सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल पवन, और इस पर अब क्या कुछ रिएक्शंस रहेगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। पवन गौड़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम